ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 10 سال کی تھی جب مجھے ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا گیا جہاں کوئی بھی عزت دار لڑکی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر اب وہیں پر رہنا میری مجبوری تھی۔ میں صرف اور صرف اس لیے زندہ تھی کہ کسی دن اس جہنم سے نکل کر دنیا کے کسی کونے میں اپنی چھوٹی سی جنت بسا لوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس خواب کی تعبیر اس قدر بھیانک ہوگی جو میری روح تک کو جھنجھوڑ دے گی۔ کاش میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا اور نہ ہی میں اس جگہ پر پہنچتی تو شاید ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرا نام زرمین ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ میرا تعلق کس خاندان یا شہر سے تھا، بس دھندلی سی کچھ یادیں میرے دماغ کے پردے پر چلتی رہتی ہیں جو مجھے کسی طور بھی چین نہیں لینے دیتی۔ میں جہاں پر تھی وہاں تو سب نے جیسے میرا نام بھلا ہی دیا تھا، کوئی مجھے زرمین کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ یہاں پر میں سب کے لیے زری کے نام سے مشہور تھی۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میرا نام زرمین ہے۔ مجھے بس اپنے اماں اور ابا کی آوازیں یاد تھیں جو میری سماعتوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ وہ لوگ ہی مجھے زرمین کہہ کر پکارتے تھے۔ تھوڑا دماغ پہ زور ڈالوں تو یاد آتا ہے کہ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی جس کی دیواروں اور فرش پر مٹی کا لیپ میری اماں خود کیا کرتی تھی۔ شاید ہم کسی گاؤں کے رہنے والے تھے یا پتہ نہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی کچی آبادی تھی۔ کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ میں اپنے گھر کے کچے آنگن میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ان میں سے ایک میرا بھائی اور ایک بہن تھی، باقی بچے محلے کے ہوا کرتے تھے۔ شاید بھائی مجھ سے بڑا اور بہن چھوٹی تھی یا پتہ نہیں ہم دونوں بہنیں جڑوا تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس گھر میں گزارے تھے اور کسی بھی بچے کے لیے 10 سال کی عمر تک پہنچتے بہت ساری واضح چیزیں اس کے دل و دماغ پر نقش رہ جاتی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ہر چیز اچھی طرح یاد نہیں تھی۔ شاید اس لیے کہ میں اس 10 سال اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میں اپنی زندگی کے باقی کئی سال کسی ایسی جگہ پر گزار چکی تھی جہاں میرا ماضی بہت دھندلا پڑتا تھا اور کوئی مستقبل کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف حال تھا جس سے میں راضی نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ شام جب ایک آدمی مجھے میڈم کے پاس لایا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن میرے پاس کچھ کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ شاید اس نے دھوکے سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا لالچ دیا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلی آئی۔ میڈم کے پاس لا کر اس نے مجھے میڈم کے حوالے کر دیا اور خود ایک لفافہ تھام کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میڈم نے ایک لڑکی کو بلایا اور مجھے اس کے ساتھ اندر بھیج دیا۔ پھر میں وہیں پر رہنے لگ گئی۔ مجھے وہاں گئے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ میں بہت روتی تھی، اپنے اماں ابا اور بہن بھائیوں کو یاد کرتی، لیکن کوئی بھی مجھے نہ تو ان سے ملوانے لے کر جاتا تھا اور نہ ہی مجھے ان کی بات کرنے دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن میں رو رہی تھی اور اماں ابا کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی تو مجھے میڈم نے بہت مارا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈر گئی اور پھر دوبارہ کسی کے سامنے رونا بند کر دیا۔ لیکن روز رات کو بستر پر لیٹ کے جب مجھے اپنی اماں اور بہن بھائی کی یاد آتی تو میری آنکھوں سے ساون کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ وہاں جانے کے چند دن بعد میڈم نے مجھے استاد جی کے پاس بھیجنا شروع کر دیا جو اسی عمارت کی پہلی منزل کے ایک کمرے میں وہاں پر رہنے والی بچیوں اور لڑکیوں کو گانا سکھاتے تھے۔ سروں کو سیکھتے سیکھتے کچھ ہفتے ہو گئے تھے، مگر میں کچھ سیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسا وہ لوگ چاہتے تھے میں ویسی بن نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک دن سزا دینے کے لیے میڈم نے مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، اتنا کہ مجھے تو اپنے ہاتھ پیر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا اور میں خوف کے مارے وہیں پر مر جاؤں گی، پر مجھے تو موت بھی نہیں آئی۔ میں کتنا روتی چلاتی رہی، ان لوگوں کی منتیں ترلے کرتی رہی، لیکن مجھے اس کمرے سے باہر نکال دیں، آپ لوگ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے سے نہیں نکالا گیا۔ میں روتی بلکتی وہیں فرش پر لیٹی، کب نیند کی گود میں سر رکھ کر سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آنکھ کھلی تو دن اور رات برابر تھے، وہاں پر وہی اندھیرا ڈالے ہوئے بیٹھا تھا جس کا احساس مجھے مار رہا تھا۔ میں نے دروازہ دوبارہ پیٹنا شروع کر دیا اور قسمیں کھانے لگ گئی کہ جو آپ کہو گی میں وہی کروں گی، بس مجھے یہاں سے نکال لو۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس تو حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ گلا بالکل خشک ہو گیا تھا، اب تو رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا وجود مجھے اندھیرے میں نگل لے گا۔ میری آہو پکار سن کر دروازہ آخر کار کھول دیا گیا۔ 2 لڑکیاں اور میڈم کمرے میں آئی۔ لڑکی نے لائٹ آن کی تو پتہ چلا وہ کمرہ بھی باقی کمروں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی ویران قبر میں اتر گئی تھی۔ میرا حال بہت برا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر پوری رات اور آدھا دن گزارا تھا۔ میڈم نے مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی سے پانی منگوایا اور مجھے کہنے لگی کہ آئندہ اگر ذرا بھی چوں چراں کرنے کی کوشش کی یا میری بات نہ مانی تو اس سے بھی بھیانک سزا دوں گی۔ میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دوں گی، پھر پچھتاؤ گی۔ اس لیے جو میں کرنے کا کہتی ہوں وہی کرو۔
کیونکہ وہ زندگی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور میں خاموشی سے سر ہلانے لگ گئی۔ پھر مجھے پانی اور کھانا دیا گیا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک سوتی رہی۔ اگلے دن مجھے دوبارہ استاد جی کے کمرے میں بھیجا گیا اور پھر میں دل و جان سے راگ سیکھنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں روؤں یا مرتی رہوں، بے شک ان کے ترلے منتیں کروں، مگر اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اور یہاں پر صحیح سلامت زندہ رہنے کے لیے مجھے ان لوگوں کی ہر بات ماننی پڑے گی، ورنہ یہ لوگ مجھے دوبارہ اس تاریک کمرے میں بند کر دیں گے۔ اب روزانہ میری گانے کی مشق ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے سروں کی سمجھ آنے لگی۔ ایک دن استاد جی نے میڈم کے سامنے میری بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ زرمین کی آواز بہت خوبصورت ہے اور یہ جلد ہی سروں میں پکی ہو جائے گی، پھر اس کی آواز کی وجہ سے دیکھنا کتنا دھن برسے گا۔ تو میڈم نے خوش ہو کر مجھے انعام دیا اور اسی دن میرا نام زرمین سے زری کر دیا۔ پھر میں نے کبھی بھی کسی کے منہ سے اپنا نام زرمین نہیں سنا تھا۔ جب مجھے وہاں پر رہتے ہوئے 1 سال پورا ہو گیا، تب میڈم ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی، تو میں نے دیکھا کہ ہم جس بنگلے میں رہتے تھے اس کے ارد گرد بھی ایسے ہی بڑے بڑے بنگلے تھے۔ سارے راستے اس طرح سنسان اور ویران تھے جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں، صرف کاروں کا آنا جانا تھا۔ میں نے اپنے علاقے میں رکشہ نہیں دیکھا۔ میڈم مجھے اس دن مارکیٹ لے کر گئی تھی اور میرے لیے میڈم نے بہت سارے کپڑے لیے جو سب کے سب میری پسند کے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میڈم کہنے لگی کہ اب میں ہی تمہاری ماں اور میں ہی تمہارا باپ ہوں۔ اگر میرے ساتھ ٹھیک چلو گی، میری ہر بات مانتی رہو گی، تو میں تمہیں ہر خوشی اور سہولت دوں گی، کیونکہ تم میری بڑی پیاری بیٹی ہو۔ اسی لیے تو میں آج تمہیں شاپنگ پر لے کر آئی ہوں۔ ہم دونوں جس جگہ پر شاپنگ کر رہے تھے وہ بہت بڑا شاپنگ مال تھا، اور میں نے اپنی 10 سالہ زندگی میں تو کبھی کوئی بڑی دکان بھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنے بڑے شاپنگ مال میں بے حد قیمتی سامان تھا جو میڈم مجھے شاپنگ کروا رہی تھی۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ایک کار میں بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد میڈم نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں اور پھر ہم واپس نکل کر بیٹھ کر بنگلے پر چلے گئے۔ بنگلے میں میری عمر کی 2 لڑکیاں اور بھی تھیں، اور کچھ ہم سے 3-4 سال بڑی تھی، باقی سب 20 سال تک، اور کچھ میڈم کی طرح 30 سے 40 کے درمیان بھی تھی۔ کمرے میں ایک جوان لڑکی کے ساتھ چھوٹی لڑکی رہتی تھی۔ میڈم کا کمرہ سب سے بڑا تھا۔ کام کاج کے لیے 2-3 نوکرانیاں بھی وہاں پر موجود تھیں جو وہیں پر رہا کرتی تھیں۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی میڈم کے پاس اسی طرح پہنچی تھیں جیسے مجھے لایا گیا تھا۔ جو لڑکیاں گانے میں اچھی ہوتی تھیں انہیں گائیکا بنا لیا جاتا، اور جو اچھا گانا نہیں گا سکتی تھیں انہیں گھر کے کاموں اور دیگر ذمہ داریوں پر لگا دیا جاتا تھا۔ یہ بنگلہ ایک پوش علاقے میں تھا، اور ہر رات بنگلے کے بڑے ہال یا پھر لان میں محفل سجتی تھی، اور بڑے بڑے بنگلوں کے اندر لوگ اپنی تقریبات میں میڈم اور ان کی لڑکیوں کو گانا گانے کے لیے بلاتے تھے۔ ایک ایک تقریب سے میڈم کو لاکھوں روپے مل جاتے، اور جو بنگلے کے اندر محفل سجتی تھی اسے تو بے شمار پیسہ بارش کی طرح برستا تھا۔ میں سب کچھ 1 سال سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ 1 سال پہلے شروع ہونے والی گانے کی کلاس ہماری ابھی بھی چل رہی تھی، بلکہ اس 1 سال کے دوران مجھ جیسی اور مجھ سے بڑی 3-4 لڑکیاں اور بھی آئی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کو تو میڈم کسی اور جگہ بھیج دیتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی جگہ تھی، مگر وہ لڑکیاں واپس کبھی بنگلے میں نظر نہیں آتی تھیں۔ ایسے ہی 3 سال اور گزر گئے۔ میں جب اس بنگلے میں آئی تھی تو نہ زندگی کا کچھ پتا چلتا تھا کہ کن راستوں پر چل رہی ہے، اور نہ ہی وقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ اماں، ابا اور بہن بھائی تو اب بھی یاد آتے تھے، مگر اب میں انہیں یاد کر کے روتی نہیں تھی، کیونکہ رونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ نہ تو یہاں پر میرے آنسوؤں کا کسی پر اثر ہونا تھا، اور نہ ہی مجھ پر کسی کو رحم آنا تھا۔ ان 4 سالوں میں یہاں جتنی بھی لڑکیاں اور بچیاں آئی تھیں، شروع میں وہ بھی روتی تھیں، مگر بعد میں سب یہاں کے رنگ میں رنگ کر اپنے اصلی رنگ بھول جاتی تھیں۔ یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی اور ہر بچی خوبصورت کپڑے پہنتی تھی۔ دنیا جہان کی آسائشیں ان کے پاس ہوتی تھی، مگر موبائل فون کسی کے پاس نہیں تھا۔ موبائل صرف اور صرف میڈم کے پاس ہوتا تھا۔ بنگلے میں PTCL فون بھی صرف میڈم کے کمرے میں لگا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اتنی زیادہ احتیاط اور سیکیورٹی کس وجہ سے کی جاتی تھی، تاکہ یہاں پر آنے والی کوئی بھی لڑکی کسی سے بھی رابطے نہ بڑھا سکے اور یہاں سے نہ نکل سکے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بنگلے میں موجود جیتی جاتی لڑکیوں کے پر کاٹ کے انہیں پنجروں میں قید کر لیا جاتا تھا۔ جب میں نئی یہاں پر آئی تھی تب محفل میں صرف گیت اور غزلیں گائی جاتی تھیں، مگر پچھلے 6 مہینوں سے میڈم نے ایک نیا کام بھی شروع کر لیا تھا۔ محفل میں ایک طرف گائیکا بیٹھ کر گیت گاتی تھی، غزل پیش کرتی تھی، دوسری طرف ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اسی گیت یا غزل پر رقص پیش کرنے لگ گئی تھی۔ اب اس کی بھی مشق بنگلے میں کروائی جاتی تھی، جس کے لیے دوسرے استاد جی آیا کرتے تھے۔ میڈم نے ان کے سامنے مجھے بھی پیش کیا، مگر انہوں نے ایک دن میں ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ میں رقص کے لیے مناسب نہیں۔
लेकिन मेरी आवाज बहुत अच्छी थी और अब मैं काफी हद तक गाना भी सीख चुकी थी। मगर 16 साल की उम्र के बाद ही हर लड़की को महफिल में गाना गाने के लिए पेश किया जाता था। फिर जिनकी आवाज और गायकी को ज्यादा लोग पसंद करते, उनका प्रोग्राम हफ्ता 10 दिन बाद और किसी किसी का महीने बाद रखा जाता था, जिसके पैसे भी ज्यादा लिए जाते थे। और बाज़ औक़ात ये अमीर लोग बड़ी बड़ी तकरीबात या अपनी शादी वगैरह की तकरीब में भी फरमाइश पर जिस गायिका को बुलाते तो मैडम उनसे मुंह मांगे दाम लेती थी, जो वो हंसी खुशी दे दिया करते थे। मेरे सामने की बात है, एक लड़की जो मेरे आने से पहले महफिल की जान थी, उसे महफिल में बुलाने के लिए लोग तरसते थे। बड़े बड़े सेठ मैडम को मुंह मांगी रकम देते सिर्फ एक रात की तकरीब के लिए, और मैडम वो भी बड़े नखरे दिखाकर कबूल करती थी। मैडम मुझ जैसी कई लड़कियों की वजह से लाखों में खेल रही थी, मगर किसी भी लड़की को 1 रुपया नहीं दिया जाता था। हाँ, ये सच था कि उनके रहन सहन और खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी जाती थी। हर महीने लड़कियों को पार्लर भी भेजा जाता था, मगर ना तो किसी के पास मोबाइल फोन था और ना ही किसी को पैसे दिए जाते थे। मैं जब 15 साल की हुई तो एक मर्तबा मैडम की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो बिस्तर से लग गई थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को मैडम चेकअप करवाती थी, मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता था। इस दौरान मैडम के कमरे में मैं ज्यादा वक्त गुजारती, उनकी खिदमत करती रहती। वो मुझसे पहले ही बड़ी खुश थी और जब मैंने उनकी बीमारी में दिन रात उनकी खिदमत की तो मैं इनके दिल के और करीब होती गई। फिर उन्होंने मुझे अपने बराबर वाला कमरा दे दिया, जिसमें मैं अकेली रहती थी। मुझ पर इस खास नजरे करम की वजह से कुछ लड़कियां मुझसे जलने लग गईं, मगर मुझे इस बात की परवाह नहीं थी। मैं जानबूझकर मैडम के करीब रहने की कोशिश करती और हर काम बड़े अच्छे तरीके से वक्त पर करके मैडम को दिखाती थी। और मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि मैं उनकी मंजूर नजर बन जाऊं और फिर किसी वक्त इस बात का फायदा भी उठा सकूं, और ऐसा होने भी लगा था। अब मैं अक्सर मैडम के कमरे में पाई जाती थी। एक दिन जब मैं शाम के वक्त उनके कमरे में गई तो बड़ी उदास लग रही थी। उस रात कोई तकरीब भी नहीं थी, इसलिए मैं वहीं बैठकर मैडम के पैर दबाने लग गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैडम की आंखें नम हो रही हैं। बार बार वो अपनी आंखों को साफ कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सर दर्द का बहाना बना दिया और फिर एकदम उठकर बैठ गईं और मुझसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ यहाँ पर अब तक तुम्हारा दिल नहीं लगा और ना ही तुम यहाँ रहना चाहती हो। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई कि मैडम को ये बात कैसे पता चली, मगर मैं खामोश बैठी रही। वो दोबारा बोलने लगी। उन्होंने कहा कि मैं भी जब पहली मर्तबा यहाँ आई थी तो कई साल तक इस जगह और यहाँ के लोगों को कबूल नहीं कर सकी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आदत पड़ी और अपनी मैडम की इतनी खास हो गई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही मुझे अपनी जगह दे दी थी। अब न जाने कितने साल गुजर चुके हैं, मैं उस बंगले में मैडम की बनकर रहती हूँ, मगर कभी कभी इस माहौल और जिंदगी से दिल उकता जाता है। लेकिन हम जैसे लोगों के पास कहीं और जाने का कोई रास्ता और ठिकाना भी तो नहीं होता। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम्हें या तुम जैसी बाकी लड़कियों को कैसा महसूस होता है, मगर अब यही हमारी जिंदगी है जिसे हमने हर हाल में कबूल करना है। मैडम की बातें सुनकर मैंने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया था, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछने लगी कि तुम जानकर क्या कर लोगी। मैंने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर कम से कम मुझे इतना तो पता होगा कि मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का जिम्मेदार कौन है। तो मैडम मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा ताल्लुक एक गांव से था और मैं एक गरीब घर की लड़की थी। घर में गुर्बत के साए मंडला रहे थे, मगर अम्मा अब्बा ने हम तीनों बहन भाइयों को अपने सीने से लगाए रखा था। वो हमें अपने प्यार और शफकत की छांव में रख के दुनिया की तेज धूप से बचाना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से किसी ने ही अब्बा और अम्मा को धोखा दे दिया। हम दोनों बहन भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जबकि मुझसे छोटी बहन को अभी स्कूल में नहीं लगाया था। स्कूल की वर्दी अगर कभी धुली न होती तो अम्मा हमें घर के कपड़ों में ही स्कूल भेज देती थी। ऐसे ही एक स्याह दिन हम दोनों बहन भाई स्कूल में थे। जब छुट्टी हुई तो भाई हस्बे मामूल शरारतें करता हुआ आगे आगे भागने लगा और अपने दोस्तों के साथ गायब हो गया। मैं बच्चों के हुजूम में सड़क पर चल रही थी कि अचानक मेरी नजर चच्चा पर पड़ी। चच्चा मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिलाई और फिर कहने लगे कि तेरे अम्मा अब्बा कहीं शादी में गए हैं। मुझे भी उन्होंने वहीं पर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलूं, तो अब हम गाड़ी में बैठकर जाएंगे। फिर चच्चा के साथ मैं एक बस में सवार हो गई। मैंने चच्चा से कहा भी कि भाई तो स्कूल में था, वो घर चला गया होगा, हम उसे भी ले लेते हैं, मगर चच्चा ने कहा कि वो तेरी चच्ची के साथ चला जाएगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। बस बहुत देर तक अपने रास्ते पर चलती रही और फिर एक मंजिल पर उसने हमें उतार दिया। चच्चा मुझे लेकर उस बंगले में पहुंच गए और चच्चा मेरे बदले नोटों का लिफाफा थामकर हमेशा के लिए मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। घर जाकर उन्होंने अब्बा अम्मा को क्या बताया और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती थी।
मगर मैडम ने ये सब बताने की वजह से कुछ बातें मुझे भी याद आने लगी थी। मैं हैरान परेशान बैठी थी कि मेरे सगे चचा ने मुझे बेच दिया था। ऐसा कैसे हो सकता था, जबकि चचा की अपनी भी एक बेटी थी जो मुझसे थोड़ी सी छोटी थी। माना कि चचा भी अब्बा की तरह गरीब थे और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते थे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर इंसान के घर में गुर्बत हो या हालात खराब हो तो क्या वो अपनी बेटियों को बेच देता है? मैं भी तो उनकी बेटी जैसी ही थी। ये सब सोचकर मुझे रोना आ गया। तो मैडम ने पहली मर्तबा उस दिन मुझे बड़ी शफकत से चुप करवाया और फिर मैंने मैडम से सवाल किया कि क्या आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ जानती हैं? वो किस गांव के रहने वाले थे या अब कहाँ हैं? तो मैडम ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि यहाँ से कोई कहीं जा नहीं सकता। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो सारी जिंदगी यहीं पर गुजारता है। इसलिए तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो और जो जिंदगी तुम्हारे सामने है उसे कबूल कर लो, बस। फिर उस दिन के बाद ना मैडम ने मुझसे ऐसी कोई बात की और ना ही मैंने उनसे कोई सवाल पूछा। मैं अब रोजाना कई मर्तबा सोचती, अपने दिमाग पर जोर डालती कि मैं किस स्कूल में पढ़ती थी, मैंने स्कूल का नाम क्या था, मेरे गांव का नाम क्या था। मुझे तो सिर्फ अपने अब्बा का नाम याद था, लेकिन महज एक नाम से मैं उन्हें इतने बड़े मुल्क में तलाश तो नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरा गांव कहाँ पर है कि मैं वहाँ जाकर अब्बा को तलाश करती। मगर सवाल तो ये पैदा होता था कि मैं इस बंगले से निकलूंगी कैसे। फिर इन्हीं सोचों और यादों के साथ वो वक्त भी आ गया जब मुझे पहली मर्तबा तकरीब में गीत पेश करना था। वो महफिल ऐसी सजी कि एक महफिल के बाद ही मेरे गाने के दाम आसमान को छूने लगे। शायकीन तो जैसे मेरी आवाज के दीवाने हो गए थे। मैं जब गाना गाती तो सब सुरूर में आ जाते और आंखें बंद करके सर को हिलाते रहते थे। महफिल की जो फीस थी उसके अलावा मेरे गाने पर नोटों की बरसात हो जाती थी। मैडम बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने भी दोबारा कभी भी उनसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की तो उनका एतबार मुझ पर बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि मैडम ने बड़ी जल्दी इस बात का ऐलान कर दिया कि चंद साल बाद मैं अपनी जगह जरी को दे दूंगी ताकि वो मेरे सामने ही सारा निजाम संभाल ले। पता नहीं मैडम को मुझ में ऐसा क्या नजर आता था, मगर मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मेरा गाना सुनने के लिए आने वाले शायकीन में और स्टेटस के लोग आते थे। अमीर से अमीर और पढ़े लिखे कामयाब बिजनेसमैन भी उन महफिलों की बात करते थे। उन्हीं में एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में मुझे कुछ और ही नजर आता था। पहले तो मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर फिर नोट करना शुरू कर दिया कि वो डॉक्टर मेरा गाना सुनते हुए मुसलसल मुझे देखता रहता था। यहाँ तक कि वो पलके झपकाना भी भूल जाता था। पहले तो वो हफ्ते बाद आता था, लेकिन फिर उसने हफ्ते में 2-3 मर्तबा आना शुरू कर दिया। फिर ऐसा वक्त आया कि वो महफिल में आने लगा। वो 30-32 साल का नौजवान और एक कामयाब डॉक्टर था। मुझे तो उसके बारे में कम से कम यही मालूमात थी और ये सब मुझे मैडम ने खुद बताया था, क्योंकि मैडम ने कहा था कि वो तुम्हारा एक गीत सुनने के लिए सबसे ज्यादा पैसे देता है। और उसने ये भी कहा कि अगर जरी सिर्फ मेरे लिए गाना शुरू कर दे तो मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। मैं ये सुनकर कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि अगर मैंने गीत ही गाना है तो किसी एक शख्स के सामने गाऊं या हजारों के, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने मैडम से कहा कि जैसा उनको मुनासिब लगे वो कर सकती हैं। मैडम ने उस बंदे की बात मान ली। फिर उसके बाद मैं कभी बंगले की महफिल में नहीं बैठी। वो एक अलग कमरे में बैठता था जहाँ मैं कोई गीत या गजल पेश करती और वो सुनने के बाद बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता। मुझे उसकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैंने जब से गाना शुरू किया था तब से लोगों को अपने लिए जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए देखा था। फिर ऐसे में किसी शख्स का नजरअंदाज करना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मगर एक दिन तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। हस्बे मामूल मैं गाना पेश करने के लिए जब उस कमरे में गई और जाकर जमीन पर बैठी तो उसने इशारा करके मुझे गाना गाने से रोक दिया। कमरे का दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा कि मुझसे शादी करोगी। मैं उसके सवाल पर इस हद तक हैरान थी कि पलके झपकाना ही भूल गई। भला कोई एकदम से ऐसा कैसे कह सकता था। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी तो वो दोबारा बोलने लगा कि जो तुमने सुना है मैं वही कह रहा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी शरीका हयात बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपने हम सफर के तौर पर कबूल कर लो तो मेरे लिए खुशबख्ती होगी और इस बात की फिक्र न करना, मैं मैडम से पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ। ये सुनकर तो हैरतों का एक पहाड़ मेरे ऊपर गिर गया। मैडम ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो शख्स मुझे बेवकूफ बना रहा है। हालांकि मोहब्बत तो मैं भी उससे करने लगी थी। पता नहीं किस कमजोर लम्हे में मेरे दिल के अंदर ये एहसास जागा था, मगर उस दिन उसने इजहार किया और साथ ही मुझे शादी का कह दिया। मैं बगैर कोई जवाब दिए कमरे से चली गई और फिर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आधी रात के बाद मैडम कमरे में आई। उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की तो मैं हैरत से उनका मुंह तकने लगी। मैडम ने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे अंदर अपना आप नजर आता है। मैं भी तुम्हारी तरह
तरह किसी अपने के हाथों ही यहाँ पहुंची थी, और मुझे ऐसे लगा कि अगर कोई तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता है तो मुझे उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब को खुद इजाजत दी थी, और तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। जो पैसा मैंने तुम पर लगाया था उससे कई गुना ज्यादा तो तुम कमा के दे चुकी हो, इसलिए तुम अब अपनी जिंदगी का फैसला करने में आजाद हो। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। फिर मैडम ने मुझे ये कहकर सोचने का कहा और कमरे से चली गई। 2 दिन बाद मैडम ने मुझे चुपके से वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि अगर वो सबके सामने मुझे जाने देती या मेरा निकाह वहीं डॉक्टर के साथ करवाती तो उसे बाकी लड़कियां भी बगावत कर सकती थी। लेकिन मैडम ने मेरे जाने से पहले मुझसे एक वादा किया था कि मैं आइंदा किसी लड़की को यहाँ पर खरीद कर ना रखूंगी और ना ही आगे इस काम को बढ़ाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन सब लड़कियों को किसी ऐसे काम पर लगा दूं जिससे उनकी जिंदगी संवर जाए। इस सिलसिले में मैंने एक NGO से भी बात कर ली। ये सुनकर मैं बेहद खुश हो गई। मुझे अपनी शादी से ज्यादा इस बात की खुशी हो रही थी। फिर मैं मैडम का फोन नंबर अपने साथ लेकर डॉक्टर के साथ चली गई। निकाह के बाद वो मुझे अपने बंगले में ले गए, लेकिन बंगले में जाते ही मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे मैं किसी अस्पताल में आ गई। वहीं अस्पतालों की मखसूस महक वहाँ से आ रही थी और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर देखने लगी तो डॉक्टर ने बताया कि बंगले के आधे हिस्से में मैंने अस्पताल बना रखा है, जिसमें 2 वार्ड हैं और पूरा स्टाफ यहीं काम करता है। मैंने वो हिस्सा देखने की ख्वाहिश की तो डॉक्टर साहब मुझे अपने साथ वहाँ ले गए, लेकिन ये देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा कि वहाँ पर सिर्फ औरतें ही औरतें थी। कोई भी मरीज ऐसा नजर नहीं आया जो मर्द या बच्चा हो। जवान और अधीर उम्र की औरतें एक एक बेड पर लेटी हुई थी। किसी को ड्रिप लगी हुई थी तो कोई आराम से सो रही थी। नर्सिंग स्टाफ भी औरतों पर ही मुश्तमिल था। डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं दिया और रिहायशी हिस्से में ले गए, जहाँ मेरा कमरा भी था। बंगले का रिहायशी हिस्सा बेहद खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। कमरे में भी बहुत नफीस सजावट की गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये सोच सोच कर अपने शौहर पर फख्र हो रहा था कि वो इंसानियत के नाते खिदमत खल्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि वो उन औरतों का इलाज अपने अस्पताल में करते हैं जो गरीब और बेसहारा होती हैं, जिनके पास रिहाइश की कोई जगह नहीं होती। वो बंगले के पीछे बने क्वार्टरों में रहती हैं और जिनका कोई होता है वो इलाज के बाद उसे यहाँ से ले जाता है। मैंने भी ये फैसला कर लिया कि अपने शौहर के इस अजीम मकसद में उसका साथ जरूर दूंगी। मुझे इस नई जिंदगी की शुरुआत से ही अंदाजा हो गया था कि अगर कोई अपना साथ हो तो जिंदगी किस कदर खूबसूरत लगती है। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। एक मुलाजमा कुल वक्ती थी जो हर वक्त काम के लिए मौजूद रहती और एक जुज वक्ती मुलाजमा भी आया करती थी। मेरे शौहर तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देते थे। हाँ, लेकिन कभी कभी फरमाइश करके कोई न कोई गीत जरूर सुनते थे। मैं भी बड़े दिल से उनके लिए सज संवर के उन्हें गीत सुनाया करती थी। उन गीतों में मैं अपने दिल की बातें करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और हम दोनों की खूबसूरत जिंदगी में बहारें ही बहारें थी। डॉक्टर साहब सुबह से दोपहर तक एक अस्पताल में जॉब करते थे, फिर वहाँ से 2 घंटे के लिए अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते, उसके बाद घर वापस आ जाते, फिर आधा या घंटा बंगले में बने अस्पताल में गुजारते। इस तरह उन्हें पूरे दिन में अपने और मेरे लिए बहुत कम वक्त मिलता था। मगर शाम 7 बजे के बाद वो कहीं नहीं जाते थे। अगर कोई इमरजेंसी होती तो फिर उन्हें जाना पड़ता था। शुरू में मुझे उनकी ये टफ रूटीन अच्छी नहीं लगती थी, मगर धीरे धीरे मैं आदी होने लग गई। मैंने ये देखा था कि उनकी फैमिली में और कोई नहीं था। एक दिन पूछा तो पता चला कि वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और ये बंगला जायदाद वगैरह उनको अपने अब्बा से ही हिस्से में मिला था। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो कम ही रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते थे, क्योंकि सबको बस यही था कि उनकी बेटी की शादी डॉक्टर साहब से हो जाए। मगर वो सिर्फ उससे शादी करना चाहते थे जिसे देख के उनका दिल धड़कना भूल जाए, और वो खुश नसीब मैं थी। अब मैं उनके साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। इस दौरान मेरा राब्ता मैडम से भी रहा। उन्होंने वादे के मुताबिक 1 महीने के अंदर NGO की मदद से अपने बंगले में मुख्तलिफ काम शुरू कर दिए थे, जो लड़कियां बड़े शौक से कर रही थी। 1-2 मरतबा मैं भी सबसे मिलने वहाँ गई थी। मैडम और लड़कियों के लिए रिश्ते भी देख रही थी। एक रात मैं और डॉक्टर साहब अपने कमरे में सुकून से सो रहे थे कि मुझे अजीबो गरीब आवाजें आने लग गईं। वो आवाजें अस्पताल वाले हिस्से से आ रही थी। मैं परेशान हो गई और हैरत हो रही थी कि उस रात डॉक्टर साहब की आवाजों से आंख नहीं खुली थी, वरना वो बड़ी जल्दी जाग जाते थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और उठकर बाहर चली गई। इससे पहले उन 3 महीनों में मैंने इस तरह का शोर शराबा नहीं सुना था। मैं अस्पताल वाले हिस्से में गई। एक वार्ड से किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहाँ पर 2 नर्सें भी खड़ी थी और कुछ मरीज खवातीन भी जमा थी। मैं जैसे ही वहाँ पहुंची तो ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि एक औरत अपने आप को पीट रही
थी। सबसे हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी कि मुझे मार दो, मैंने जिंदा नहीं रहना। और मैं हैरत से उसे देख रही थी, क्योंकि ये तो वही औरत थी जो मैडम के बंगले में उस वक्त नौजवान गायिका थी जब मैं 12 साल की थी। लेकिन फिर ये वहाँ से भाग गई थी। उसके बाद कभी उसका पता नहीं चल सका। मैं उसके करीब गई और जब मैंने उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने रोना पीटना बंद कर दिया और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझे पहचान लिया था, हालांकि मैं उस वक्त काफी छोटी थी। फिर मैंने स्टाफ और बाकी औरतों को वहाँ से जाने का कहा और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई। तब उसने बताया कि वो जिस आदमी के साथ उस बंगले से भागी थी उसने निकाह तो कर लिया था, मगर उसके घर वालों ने उस निकाह को कबूल नहीं किया था। तो वो आदमी किराए के घर में उसे लेकर रहने लगा, मगर 4 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया था। उसके बाद इसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। कुछ अरसे से अस्पताल में दाखिल थी, मगर वो सरकारी अस्पताल था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए डॉक्टर साहब उसे 2 दिन पहले लाए हैं। मगर मुझे उसकी बातें सुनकर नहीं लग रहा था कि वो पागल या जहनी बीमार है। वो तो हालात की सताई हुई थी। फिर मैंने उसे अपने और मैडम के बारे में बताया तो वो बड़ी खुश हुई। मैंने उसे मैडम के पास जाने का पूछा तो वो मान गई। फिर मैंने उसे तसल्ली दी और सोने का कहा और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैंने डॉक्टर साहब को सारी बात बताई और मैडम को फोन करके वहाँ बुला लिया। वो दोनों आपस में गले मिलकर रोने लग गईं, क्योंकि दोनों एक साथ काफी वक्त बंगले पर गुजार चुकी थी। फिर मैडम उसको अपने साथ ले गई, मगर जाते जाते मैडम ने मुझे 2 लड़कियों की शादी की दावत भी थी। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मैडम की बहुत कोशिशों के बाद आखिर 2 लड़कियों की शादी हो रही थी। इसी तरह शायद बाकी सबकी जिंदगी भी बन जाए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको किसी अपने ने ऐसा धोखा दिया हो? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मजेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।